Hi student, look again we are here with our same topic. We have discussed about quadratic equation. Look, in starting we start with when we are going to be equate to our quadratic polynomial to 0, then we get quadratic equation. The standard form of quadratic equation is what? Ax square plus bx plus c equal to 0. Then we have discussed about that. The solutions of a quadratic equation, in which we have discussed about to solve by factorization method. Then we have discussed about to solve our any quadratic equation by using quadratic formula. Then after that we are going to discuss on the topic the nature of the roots. We seen that using discriminant, the value discriminant, we can talk about the nature of roots. It's a real or distinct, it's a real or equal, or it has no real roots. Then we have done some problems based on it. Again now today in this part of video we are going to solve some board problems related with our quadratic equation. We start with one of the question is that what is given there. If the difference between the roots of the equation x square plus px plus 7 equal to 0 is 6, it is given that if the difference between the roots of the quadratic equation, we have a quadratic equation, x square plus px plus 7 equal to 0. If the difference between the roots of the equation x square plus px plus 7 equal to 0 is 6, then find the value of p. Is 6, then we have to find the value of p. Let's suppose जो हमने difference ले लिया. Let's suppose the difference is alpha. Our roots are sorry. Our roots are alpha and beta. Then what we have given that in this part we have given that alpha minus beta is equal to 6. Okay. Here it is given the difference between the root is 6. Then we have to find out the value of p. अब क्या करेंगे इस तरह क्वेश्चंस में? फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरह क्वेश्चंस को हम सॉल्व करें. देन फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप इस इक्वेशंस को इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लीजिए. एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. आफ्टर कंपेयरिंग द quadratic equation by the standard form, we get the value of a is 1 here, the value of b is p, and the value of c is 7. Now we are going to be find out what is the sum of zeros. Now from here we are going to find out sum of zeros. We get alpha plus beta, sum of zeros given by minus b by a, and it's a minus p by 1, means we get minus p, means the value of alpha plus beta is what? Minus p. Now we are going to find out the product of zeros. Alpha into beta is what? Alpha into beta, it's a c by a, then 7 by 1, we get 7. Now look, we have sum of our alpha plus beta is minus p and alpha beta is 7, and we have also given that the difference is 6. Then we are going to use our concept. Now we can represent alpha minus beta square is equal to under root a plus beta whole square minus 4 alpha beta. What is the value of alpha minus beta? We have 6. Put in here 6. Alpha plus beta square, alpha plus beta whole square is p square, minus 4 alpha beta minus 4 7 minus 28. Squaring both sides, we get p square minus 28 equal to 36. Then the value of p square is equal to, we are going to find out the value of p square. Then from here the value of p is what? Plus minus 8. We get the value of p is what? Taking the square root, we have p square is equal to 64. Then taking the square root of both sides, we get the value of p is what? Plus minus 8. The value of p is what? Plus minus 8. ठीक है, चलिए फिर से देखते हैं इसको. क्या था हमारे पास? quadratic इक्वेशन गिवन थी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 7 इक्वल टू 0, और गिवन था कि जो उनके बीच के डिफरेंस है, रूट्स के बीच के डिफरेंस है, वी हैव टेकन द रूट्स अल्फा एंड बीटा इज 6. देन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पी देयर. तो क्या किया? quadratic इक्वेशन को कंपेयर किया स्टैंडर्ड फॉर्म से, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से. वहाँ से ए की, बी की, सी की वैल्यू निकाली. ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू पी, सी इक्वल टू 7. देन हमारे पास जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, सम ऑफ जीरोज इज गिवन बाय अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज व्हाट? अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए. उस कॉन्सेप्ट का यूज करके हमने क्या किया? सम ऑफ द जीरोज अल्फा प्लस बीटा निकाला, विच इक्वल टू माइनस बी. Also we have alpha into beta equal to 7. Now in the problem is given that alpha minus beta is equal to 6.
अब हमारे पास अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 6 दे रखी थी, देन वी आर गोइंग टू बी यूजिंग आइडेंटिटी अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा. आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गेट द वैल्यू ऑफ p इज व्हाट प्लस माइनस 8. ठीक है बेटा, इट्स अ प्लस माइनस 8. If alpha and beta are the roots of the equation, it's given that we have a quadratic equation. Two x square minus 6x plus a equal to 0. If alpha and beta are the roots of the equation and 2 alpha plus 5 beta equal to 12 and 2 alpha plus 5 beta is equal to 12, also it's given that if alpha and beta are the roots of quadratic equation 2x square minus 6x plus a equal to 0 and 2 alpha plus beta is equal to 12, then we have to find out the value of a. We have to get the value of a here. ठीक है बेटा, क्या गिवन है कि हमारे पास quadratic equation है जिसके जो zeros है वो अल्फा है और एक बीटा है, and also it's given that 2 alpha, the value of 2 alpha plus 5 beta is 12. Then we have to find out the values of a there. Again वो same concept use करेंगे. If zeros of equation is alpha and beta, then the value of sum of alpha plus beta minus b by a, minus b is our minus 6, minus plus 6, a is our 2, then alpha plus beta, the value of alpha plus beta is 3. Okay beta, we get the value of alpha plus beta is 3. Now also प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा वो क्या मिलने वाला c बाई ए बाई 2. ठीक है बेटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3 है, अल्फा इंटू बीटा a बाई 2 है और हमें गिवन है द वैल्यू ऑफ 2 अल्फा प्लस 5 बीटा इज व्हाट 12. क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल दो इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं. जो गिवन था 1 और ये अल्फा प्लस बीटा 2 है, अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, देन वी हैव आल्सो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 6. अभी यहाँ पे क्या लगाते हैं बेटा, यूजिंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा. देन फ्रॉम हियर वी गेट 3 बीटा इज इक्वल टू 6 and the value of beta is 2. Now we have a value of beta is 2 there, putting in it, then alpha plus 2 is 3, then the value of alpha is what 1. ठीक है, but here we have to find out the values of value of a here. Then alpha is 1 into beta is 2 equal to a by 2. Then from here we get the value of a is what 2 to the 4. We get the value of a is what 4. ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, बोर्ड क्वेश्चन. सो दैट इफ द रूट्स ऑफ फॉलोइंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल देन AD इक्वल टू BC. So that if the roots of following quadratic equation are equal, if AD equal to BC, we have to be so that AD equal to BC, and our quadratic equation is what, it's given that x square plus 2 times AC plus BD ठीक है. जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या गिवन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2AC प्लस BD.
2 times AC plus BD equal to x into x plus C square plus D square to 0. It's given that it's having all roots are equal. तो जो हमारे पास कंडीशन होगी क्या होगी, इट्स अ व्हाट, AD इक्वल टू BC. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ क्या करते हैं, ये इसको स्टैंडर्ड फॉर्म्स ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर कर लेते हैं. देन फ्रॉम हियर वी गेट द वैल्यू ऑफ a इज आवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. द वैल्यू ऑफ b इज व्हाट, 2 times AC plus BD, and the value of C, capital C is what, C square plus D square. Since its roots are equal, then what we have the condition, it's a b square minus 4ac equal to 0. Okay beta, if roots of the quadratic equation is equal, its distance it's a real and equal, means what do we have the condition, b square minus 4ac equal to 0. Now putting the values here, b square means we get 4, 2 square is 4, AC plus BD whole square minus 4AC okay. We have put all these values, हमने सारी values put कर दिया. ठीक, then we get now क्या करेंगे, ऑब्वियसली कि इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना ही पड़ेगा, और तो कुछ भी दिखता नहीं यहाँ पे. देन वी आर गोइंग टू बी स्क्वायरिंग दिस AC प्लस BD स्क्वायर. देन वी आर गोइंग टू एक्सपेंड दिस a स्क्वायर c स्क्वायर, मीन्स वी हैव 4a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स b स्क्वायर d स्क्वायर प्लस 4 to 8 a b c d. ओके, देन हियर वी गेट minus 4 a स्क्वायर c स्क्वायर minus 4 b square c square minus 4 a square d square and minus 4 b square d square equal to 0. ठीक है, चलिए बस चेक करते हैं कुछ टर्म्स कैंसिल होते कि नहीं होते हैं. इट्स 4a स्क्वायर c स्क्वायर कैंसिल आउट, 4b स्क्वायर d स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर d स्क्वायर कैंसिल आउट, और कुछ टर्म्स कैंसिल होते हैं. व्हाट वी हैव, लोग अगर हम कुछ साइड में राइट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं. एंड फाइनली वी हैव 4b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर d स्क्वायर माइनस 8ab c d इक्वल टू 0. अभी लुक व्हाट वी सीन दैट कि अगर यहाँ पे इसको 4 से डिवाइड मार देते हैं, देन व्हाट वी गेट, b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर d स्क्वायर माइनस 2ab c d इक्वल टू 0. ठीक है बेटा, है क्या ये, इट्स लुक अगर ध्यान दें तो ये हमारा bc प्लस ad का होल स्क्वायर, bc सॉरी इट्स माइनस, मीन्स इट्स व्हाट, इट्स bc माइनस ad होल स्क्वायर. नाउ वी हैव bc माइनस ad होल स्क्वायर 0, मीन्स तभी पॉसिबिलिटी है जब bc माइनस ad की वैल्यू 0 हो, मीन्स हियर bc इक्वल टू AD और AD इक्वल टू BC, जो हमें यहाँ पे शो करना था. ठीक है, बोर्ड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से रिविजन करते हैं. हमारे पास कोडिंग क्वेश्चन गिवन था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ac प्लस bd इंटू एक्स प्लस c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इक्वल टू 0. ठीक, हमने क्या किया, हमने इक्वेशंस को कंपेयर कर दिया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c कंपेयरिंग, and we get the value of capital A is a square plus b square, the value of b is 2 times ac plus bd and the value of capital C is c square plus d square. Now it's given that कि जो quadratic equation है उसके जो roots हैं वो equals हैं, then what do we have, our discriminants must be should be equal to 0. जो हमारी discriminant थी उसको 0 के बराबर होनी थी. ठीक है बेटा, then what you do, जो हमने यहाँ पे डिस्कशंस किया, जो हमने फॉर्म की वहाँ पे हमने क्या देखा कि we get the values is that bc square minus bc minus ad whole square equal to 0. then अब यहाँ सब्स्टिट्यूट किया, वैल्यू पुट किया, उसको सॉल्व किया, देन वी गेट दिस कि जो हमें वैल्यूज मिली है, जो हमने सॉल्यूशन किया हुआ है, फ्रॉम हियर वी गेट bc minus ad is equal to 0.
लुक का बेटा, ठीक है। जो हमने वहाँ पे सॉरी फॉर डेट BC इस क्वेश्चन की डिस्कशन की बात कर रहे थे, जहाँ पे हम लोगों ने लिखा प्रॉब्लम्स में ए इज टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी इज टू 2 टाइम्स AC प्लस BD एंड सी इज टू सी स्क्वायर प्लस स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4AC को 0। यहाँ पर हमने सारी वैल्यूज पुट की, इसको सॉल्व किया, बी स्क्वायर माइनस 4AC को 0, तो सारी वैल्यूज पुट किया एंड आफ्टर सिंपलीफाई व्हाट वी सी दैट वी गेट दैट द वैल्यूज ऑफ दिस BC for B square C square plus A square D square minus 2ABC equal to 0, then we get BC minus AD whole square equal to 0, then we get the value of BC equal to AD, ठीक है। तो हम इस तरह से इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Now what we have, if the equation 1 plus m square x square, if the equation 1 plus m square into x square plus 2mcx plus c square minus a square equal to 0, if the equation 1 plus m square into x plus 2mcx plus c square minus a square equal to 0 has equal roots, then we have to be show that c square equal to, क्या हमें शो करना है, we have to show that c square equal to a square into 1 plus m square, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन है, जो लास्ट क्वेश्चन थी उसके साथ हमारी क्वेश्चन मैच कर रही है, सिमिलरिटी विद आवर लास्ट क्वेश्चन। देन अगेन वो सेम फॉर्मेट करेंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। वी गेट द वैल्यू ऑफ a इज व्हाट 1 plus m square, द वैल्यू ऑफ b इज व्हाट 2mc and the value of c is what c square minus a square, c square minus a square। now look, ठीक है बेटा, डिस्क्रिमिनेंट की क्या डी की वैल्यू 0 होती है तो हमारे रूट्स इक्वल होते हैं, यूज करते हैं कॉन्सेप्ट। नाउ व्हाट वी हैव b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अभी बात करते हैं b की वैल्यू, तो इट्स 2mc, द वैल्यू द स्क्वायर ऑफ 2mc क्या हो जाएगा, इट्स 4m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4ac, a इज व्हाट 1 plus m square and our c is what c square minus a square equal to 0, ठीक है बेटा, वैल्यू पुट कर दिया। अब सिंपलीफाई कर लेते हैं, 4m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 4 माइनस 4 c स्क्वायर माइनस, ठीक है, क्या है 1 से इसको c को किया और एक करेंगे, माइनस 1 प्लस 4a स्क्वायर देन माइनस 4m स्क्वायर c स्क्वायर एंड माइनस माइनस 4m स्क्वायर एंड a स्क्वायर इक्वल टू 0, ओके। नाउ आवर 4m स्क्वायर c स्क्वायर कैंसिल टू ईच अदर बिकॉज उनके साइन नेगेटिव, तो कैंसिल कर दिया। देन फाइनली व्हाट वी हैव, नाउ वी हैव 4c स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर a स्क्वायर। नाउ देन 4c स्क्वायर इक्वल टू टेक आउट कॉमन 4a स्क्वायर and cancel out this 4, then finally what we have, finally we have c square equal to a square into 1 plus m square, जो कि हमें शो करना था, ठीक है बेटा। जस्ट क्वेश्चंस को केयरफुली रीड करिए, रीड करने के बाद नेचर ऑफ फोर्स बेस्ड क्वेश्चन है कि रिलेशनशिप वाला बेस्ड क्वेश्चन है, उसको थिंक करिए, उसके बाद वैल्यूज पुट करिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए, ठीक। चलिए आते हैं भाई, we are going to take next question. In the following situations possible, if the following situation is possible, the sum of the age of a mother and her daughter is 25 years. यहाँ पे given है एज का क्वेश्चन है, हमें चेक करना है कि ये सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं है। द सम ऑफ एजेस ऑफ मदर एंड डॉटर इज, द सम ऑफ हिज मदर एंड डॉटर एज का जो सम है वो 25 ईयर्स है। Mother and daughter's sum of ages is 25 years.
एज ऑफ मदर प्लस एज ऑफ डॉटर 25 दे रखा था, ठीक। एंड 5 years ago the product of their ages was 58. 5 years ago, 5 years ago जो प्रोडक्ट है, मतलब कि मदर की जो प्रोडक्ट है, आई मीन 5 years ago जो उनकी एजेस है उनका प्रोडक्ट दे रखा है। मैंने सिंपली में एम इंटू डी लिया है, पर वो बाद में जो बनाएंगे क्वेश्चन, वो दे रखा है 58। वो जब सिर्फ नोट कर रखा हूँ, एक्चुअल एजेस नहीं ले रहा है अभी। आज प्रोडक्ट इज गिवन 58। देन हमें चेक करना है कि क्या ये सिचुएशन या क्या कंडीशन है वो पॉसिबल है या नहीं। तो बात करते हैं, लेट्स जो मदर एज है x years, देन डॉटर एज क्या हो जाएगा, दोनों उसका एज का सम 25 है, मदर का एज x है तो 25 माइनस एक्स, ठीक। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा 5 years ago, 5 years ago की मदर केस क्या हो जाएगी x माइनस 5, डॉटर केस क्या हो जाएगी 25 माइनस एक्स माइनस 5, 20 माइनस एक्स। जिनके एजेस का प्रोडक्ट है, इट्स गिवन दैट कि 58 है। चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देन वी गेट 20x माइनस 100 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 58। देन आप फर्दर सॉल्व करते हैं, देन वी गेट एक्स स्क्वायर माइनस 25x एंड प्लस 158 इक्वल टू 0। देखिए क्वेश्चंस में 5 years ago प्रोडक्ट देयर एजेस वर 58। फाइनली यहाँ पे उन्होंने हमें इसको सॉल्व करने के लिए बात किया ही नहीं है। इज द फॉलोइंग सिचुएशन इज पॉसिबल, सिर्फ सिचुएशंस की पॉसिबिलिटी की बात पूछ रहे हैं। तो जनरली देखो इक्वेशन बना रखी है, तो इसकी पॉसिबिलिटी तभी होगी जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और डी इक्वल टू 0, ये दो केसेस हों तो हम चेक करने जाएंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो लेस देन 0 नो रियल वैल्यूज, अगर ये हुई तो ये कंडीशन पॉसिबिलिटी फिर नहीं होगा। तो चेक कर लेते हैं। बी स्क्वायर मीन्स वी गेट 25 625 माइनस 4ac 4 इंटू 1 और इंटू सी इज आवर 158। 625 माइनस 4 8 4 32 3 5 4 23 कैरी 2। लुक 625 माइनस 632, ऑब्वियसली जो वैल्यू है नेगेटिव मिलने वाली है। मीन्स इट्स अ केस ऑफ अ नो रियल रूट्स। जो हमारी केस है उस केस में हमें कोई भी रूट्स रियल नहीं मिल रहा है। देन व्हाट आर यू गोइंग टू डू दैट, मीन्स जो ये केस है ये केस पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है बेटा, ये पॉसिबल केस नहीं हो सकता, ऐसा कोई सिचुएशन क्रिएट नहीं हो सकता। चलिए अब वी आर गोइंग टू टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। If AD is equal to not BC, what do you have given that? If AD is equal to not BC, अगर AD और BC इक्वल ना हो, then the equation हमने जैसे अभी इस तरह के इक्वेशन की बात की थी, क्वेश्चंस लगाया हुआ है जहाँ पे हमने शायद अभी आज की डेट में ही एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ac प्लस बी डी प्लस 2ac प्लस बी डी एक्स एंड प्लस ठीक है। जस्ट हमने भी जस्ट बिफोर क्वेश्चन लगाया कि इफ वी हैव दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसके रूट्स अगर क्या हो इक्वल हो, देन AD इक्वल टू BC। जस्ट रिवर्स क्वेश्चन है, बोर्ड क्वेश्चन भी है। उसने पूछा कि अगर इफ वी हैव कंडीशन दैट मीन्स इफ आवर AD इज नॉट इक्वल टू BC, मीन्स अगर हमारे पास AD इक्वल टू नॉट BC मीन्स जो इसके रूट्स हैं इट हैज नो रियल रूट्स, ये हमें शो करना है। ठीक है कि अगर AD BC बराबर नहीं होगा तो ही हमें क्या मिलेगा वहां पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो जो भी कुछ बात करेंगे उससे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट की बात कर लेते हैं।
पहले इसका डिस्क्रीमेंट निकालते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, बी स्क्वायर 2 टाइम्स ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर माइनस 4a और c, ठीक है। हम चलते हैं डिस्क्रीमेंट निकालने का। देन फाइनली इसको सॉल्व करते हैं। 2 स्क्वायर 4, तो हमें क्या मिल रहा है, वी गेट 4a स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 8abcd। हियर वी गेट माइनस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 4 बी स्क्वायर डी स्क्वायर, ठीक। क्या क्या हमने सारे चीज़ों को एक्सपेंड कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया। देन तो फाइनली इसको सॉल्व करते हैं। तो व्हाट वी सी दैट कि ये 4ac स्क्वायर 4a स्क्वायर सी स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, 4b स्क्वायर डी स्क्वायर और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। एंड व्हाट वी हैव, तो फाइनली व्हाट वी हैव 8abcd माइनस 4a स्क्वायर 4b स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर डी स्क्वायर, ठीक है बेटा। जो फाइनली हमारे पास बच रहा है, व्हाट वी गेट माइनस 4a स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर सी स्क्वायर 8abcd, ठीक। और माइनस कॉमन भी कर लें, अगर माइनस 4 कॉमन कर लें देन व्हाट वी हैव a स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस b स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2abcd हो जाएगा। देन माइनस 4 व्हाट वी हैव इट्स ad माइनस bc होल स्क्वायर, ठीक, माइनस 4 ad माइनस bc होल स्क्वायर। अब आते हैं, अभी हमने डिस्क्रीमेंट नेचर ऑफ रूट्स की डिस्क्रीमेंट की बात करें, हमने डिस्क्रीमेंट निकाली यहाँ पे, ठीक। बट प्रोपोर्शन इसमें निकाल लिया। इफ वी हैव इन दिस केस इट हैज नो रियल रूट्स व्हेन इट इज ओनली पॉसिबल दैट व्हेन आवर ad इज नॉट इक्वल टू bc, मीन्स ad bc हमारा इक्वल ना हो, ठीक है। तो अब उस पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। इफ ad इज नॉट इक्वल टू bc, यहाँ से मीनिंग की बात करते हैं, इस मीन्स ad माइनस bc कैन नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है, होगा नॉट इक्वल टू 0। अब जब हमारी ad माइनस bc नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक, अगर कोई वैल्यू जो 0 बराबर नहीं है तो या तो फिर देखो यहाँ पे या तो पॉजिटिव होगी या तो नेगेटिव होगी, पर एक चीज बेटा हम यहाँ श्योर होंगे, वो क्या श्योर होंगे, ad माइनस bc होल स्क्वायर, सही है, ठीक है ना बेटा, बात समझ आई। ad माइनस bc नॉट इक्वल टू 0 मींस या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव है, पर वी आर श्योर अबाउट दैट द स्क्वायर ऑफ दिस ad माइनस bc स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, कोई भी वैल्यू लेने abcd की, ठीक। अब ad माइनस bc होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, तो हम बात कर रहे हैं इसमें अगर माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ऑब्वियसली इट्स लेस देन 0, और यही हमारा डिस्क्रीमेंट था इस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का, मीन्स आवर d इज लेस देन 0। एंड जब हमारा d लेस देन 0 होता है बेटा तो हमें क्या मिलता है, मीन्स इट हैज नो रियल रूट्स, इट्स हैज नो रियल रूट्स, ठीक है। तो लुक लास्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अगर एनीबॉडी किसी भी को कोई भी डाउट्स होगी प्रॉब्लम्स के साथ देन प्लीज आस्क मी, ठीक। देन वी हैव टुडे डिस्कस अगेन अवर टॉपिक क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस, मे बी कुछ अगर कुछ बोर्ड क्वेश्चंस और भी मिल जाते हैं तो वहाँ पे डिस्कशन की बात करेंगे। अदरवाइज वी आर गोइंग टू डिस्कस विद आवर नेक्स्ट टॉपिक, इट्स आवर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इस पर डिस्कशन की हम बात करेंगे। टिल देन आप सिमिलर बोर्ड प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करिए, प्रैक्टिस करिए घर पे। देन थैंक्स टू ऑल फॉर टुडे क्लास, थैंक्स।